Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 26th of October 2021, Tuesday. Inspiration of the day is if you want to achieve greatness, stop asking for permission. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Brokerage turned cautious over India valuations. In the past 1 week, at least three brokerage houses have recommended to their client that they should consider their higher exposure to other markets. Which are those other markets? China and Indonesia, which have hugely underperformed India this year. So few foreign brokerage houses have actually turned cautious on India's pricey valuation and earning delivery since last few sessions. And if we talk about the Nomura has recently downgraded Indian equity from overweight to neutral. And why Nomura has done this? Citing the unfavorable risk reward. और रिसेंटली यूबीएस ने भी इंडिया के हालांकि जो इंस्टांस है उसको ओवरवेट ही मेंटेन किया, लेकिन उसने एक नोट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया हैड टर्न अनअट्रैक्टिव एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट its valuations are relatively getting extremely expensive in comparison to other Asian countries. And meanwhile, the Christopher Wood, the global head of equity strategy, Zafri said its overweight position on India had under a threat. What are actually brokerage houses? If we talk about the brokerage houses or the brokerage firm, is simply a place where investors and traders buy and sell the stock. So it is a place where investors or the trader simply buy or sell the stake. It may be, if it is operating in India, we call it domestic brokerage houses or Indian brokerage houses, or if it is operating in any other country, we generally in simple language we call it foreign brokerage. तो न्यूज़ क्या है? बेसिकली न्यूज़ ये है कि जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस हैं, फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स हैं, दे आर बिकमिंग कॉशियस. किस लिए कॉशियस हो रही है? इंडिया के जिस तरह से प्राइसी वैल्यूएशंस हो रहे हैं और जिस तरह से अर्निंग डिलीवरी हो रही हैं, उसको देखते हुए जो कुछ फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट को बोला है दैट दे शुड इवन कंसीडर देयर एक्सपोजर टू अदर मार्केट्स, अदर एशियन मार्केट्स, जस्ट लाइक चाइना एंड इंडोनेशिया. क्योंकि जिस तरह से इंडिया में प्राइसी वैल्यूएशन हो रहे हैं, अर्निंग डिलीवरी अफेक्टेड हो रही है, इट इज़ highly likely that the simple wave is going to be followed by the other Asian countries, just like China and Indonesia. और रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज हाउसेस थे, चाहे वो नोमुरा हो चाहे वो यूएसबी हो, उन्होंने इंडिया के इक्विटी मार्केट को लेकर के कंसर्न रिप्रेजेंट किए थे. और सिंपली उनका ये कहना था कि इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है, इंडिया इज़ बिकमिंग ना टर्निंग नाउ unattractive and Indian equities are actually rated from overweight to neutral. और उसका सीधा सीधा एक ही रीज़न दिया था कि अनफेवरेबल रिस्क हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं. Owing to all these, India's equity market or India's equity is now a unattractive destination. और उसी को देखते हुए एटलीस्ट थ्री ब्रोकरेज हाउसेस, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस और फॉरेन ब्रोकरेज फर्म ने अपने अपने क्लाइंट्स को बोला है कि अगर इंडिया में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने जो अदर कंट्रीज़, चाइना और इंडोनेशिया जैसे जो अदर एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो आपका एक्सपोजर है उस पर आप टाइट कंट्रोल रखें या उसको आप वापस से रिकंसीडर करें. एंड द चेंज इन इंस्टांस कोइंसाइड विद द लेटेस्ट राउंड ऑफ करेक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट. और इस करेक्शन के बाद से जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, दे हैव पोस्टेड अ फिफ्थ स्ट्रेट डे अ लॉस इफ not for an 11% jump in the share of private lender ICICI Bank, which actually made 111 point contribution to the Sensex. तो सेंसेक्स जिस तरह से परफॉर्म कर रही है आफ्टर 1 वीक ऑफ रिकॉर्ड हाई, उसके बाद इस तरह की न्यूज़ इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन इक्विटी मार्केट को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी. अगर हम बात करें ICICI के अलावा जो 30 शेयर इंडेक्स है, दैट एटलीस्ट स्टिल मैनेज टू एंड विद द गेन ऑफ 145 point or 0.24%, but it is not that much satisfactory. Why? Because the broader market indices
कौन सी है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस? दैट इज निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ड्रॉप 2.3% एंड द मिड कैप 100 फॉल 1.7%. And collectively both the indices are now down over 8% from their recent high that has been achieved, I think, in the last week, and we have discussed about that achievement of Sensex and Nifty. And this is the turning pricey of stock trading above end 2019 level in terms of percentage, and it is basically a comparison of India with other Asian countries: Singapore, Thailand, Philippines, China, South Korea, Indonesia and Hong Kong. और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो अदर कंट्रीज हैं दे आर आउट परफॉर्मिंग इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, और इसीलिए ब्रोकर्स ने इन कंट्रीज़ पर वॉच या इन कंट्रीज़ के एक्सपोजर को कंसीडर करने को बोला है अपने अपने क्लाइंट को. अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, तो नॉमुरा का ये कहना है वी नाउ सी एन अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड गिवन द वैल्यूएशन. इसी तरह यूबीएस का ये कहना है कि ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लुक unattractive, especially on valuation and earning, and Asian countries look positive in comparison to these. So ASEAN countries are comparatively looking positive in comparison to Taiwan, Australia and India. तो other ASEAN nations का जो है उनको पॉजिटिव ट्रेंड में रखा है यूबीएस ने. इसी के साथ साथ नॉमुरा ने इंडिया की इन्फ्लेशन को भी प्रेडिक्ट किया है. जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कौन कौन से कमोडिटी प्राइसेस? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी. उसको देखते हुए नॉमुरा ने ये एंटिसिपेट किया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन एंड विल बैक होम विल अराउंड 1% पॉइंट. तो 1% का इंक्रीज सीपीआई में प्रेडिक्ट किया है owing to the increase of crude oil, natural gas, coal and electricity global prices. और नमूरा का ये भी कहना है कि this particular inflation level or this particular price level will continue till December 2021. तो दिसंबर तक यही प्राइस कंटिन्यू रहेगा इन, या हम ये कह सकते हैं कि जो कमोडिटी के जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो इसी तरह बढ़ेंगे. और हाँ, मार्च आते आते इट विल बी मॉडरेटेड बाई 5% as per the Nomura is one of the foreign brokerage house or foreign brokerage firm. तो ये प्रेडिक्शन है नॉमुरा के इन्फ्लेशन को लेकर के, सीपीआई को लेकर के. एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू सीपीआई बास्केट, सो वी कैन सी 2.33% weightage is constituted by crude oil, 1.29% weightage is constituted by natural gas, and 2.3% weight is constituted by coal and electricity. और significant in total 5.92% का weight constitute करते हैं crude oil, natural gas, coal and electricity into overall CPI basket. और अगर इनके प्राइस जो है वो सेपरेटली, इनका इन्फ्लेशन सेपरेटली देखा जाए तो उसको देखते हुए 0.34, 0.51 और 0.10 इसको देखते हुए टोटल 1% का सीपीआई में इंक्रीज प्रेडिक्ट किया है नॉमुरा ने टिल मार्च 22. तो नॉमुरा के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल प्राइसेस हैं ये भी दिसंबर तक कंटिन्यू रहेंगे और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी एटलीस्ट 1% तक. So let us see how RBI and other banks will take measure on it. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4. 8 banks recast exposures worth rupees 27,000 crore in OTR 2.0. So personal loan have about 80% share in the exposure restructured under regulatory package 2.0 by 8 banks who have declared results in the second quarter. हमने डिस्कस भी किया था कि recently government is actually planning to recapitalize all or few public sector banks based on their financial performance. क्योंकि कोविड की वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री वॉज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड. और जो एनपीए थे, एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट. किसी भी लोन को बैंक
कब तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं करते, जब तक कि यहाँ बोल सकते हैं कि अगर 90 डेज तक, 90 दिन तक अगर किसी पर्टिकुलर लोन में अगर उसका इंस्टॉलमेंट नहीं आता या इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं आता, तो उसको स्ट्रेस असेट्स या एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो 90 दिन की विंडो देते हैं बैंक, 90 दिन तक वो वेट करते हैं। अगर 90 दिन तक किसी लोन में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं होता है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर लोन विल बी कैटेगराइज्ड एज NPA. NPA stands for non-performing assets. So personal loan have about 80% share in the exposure. किसमें exposure है पर्सनल लोन का 80%? ऐसे लोन जिनकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है। 8 बैंक्स ने बोला है कि दे आर गोइंग टू रीस्ट्रक्चर देयर लोन वर्थ ₹27,000 करोड़। तो 8 बैंक मिलकर के 27,000 करोड़ के लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो पर्सनल लोन 80% तक है, और जो रिमेनिंग 20% लोन है दैट बिलोंग्स टू बिजनेस एंड क्रेडिट टू MSME। जबकि जो डेटा है वो अभी तक ये कह रहा था कि MSME जितना भी जो NPA हो रहा है बैंक में, उसमें MSME और बिजनेस लोन ज़्यादा है। लेकिन अब चूँकि रिस्ट्रक्चरिंग पर जा रहे हैं बैंक्स, तो उसके बाद एक्सपोजर देखा गया तो मैक्सिमम जो डिफॉल्ट लोन है दैट बिलोंग्स टू पर्सनल लोन कैटेगरी। अ टोटल रिकास्ट एक्सपोजर ऑफ दीज बैंक अंडर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, OTR, in short we call it OTR. So one time restructuring, तो one time restructuring 2.0, तो जितना रिस्ट्रक्चरिंग इस बार हो रही है, सेकेंड टाइम हो रही है, उसकी जितने लोन की उसकी जो वर्थ है वो 27,708 करोड़ की है अप्रॉक्सीमेटली। और HDFC का सबसे ज़्यादा शेयर है। HDFC द वर्ल्ड और द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक हैड द हाईएस्ट शेयर इन दिस पर्टिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। और कितना शेयर है HDFC का? 17,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 27,000 करोड़ में 17,000 करोड़ केवल और केवल HDFC का लोन है, फॉलोड बाई अनदर प्राइवेट लेंडर दैट इज ICICI बैंक, और उसका कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ का। तो अगर 27,000 करोड़ के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसमें 17,000 करोड़ HDFC का और 4,000 करोड़ ICICI का है, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्राइवेट लेंडर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जो रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज हो रही है एज पर द रेगुलेटरी पैकेज 2.0, दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द private banks. Why? Because public sector banks are actually waiting for the capitalization जो कि गवर्नमेंट करने वाली है उसके लिए। और जो रिमेनिंग पार्ट है 27 के बाद अगर हम 17 और 4 को जोड़ करके अप्रॉक्सीमेटली 5 से जो 6,000 करोड़ का जो अमाउंट बचा है, वो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। प्रॉबेबली यहाँ पर वही लोन रिस्ट्रक्चर होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू, जो ये एंटिसिपेट करते हैं कि गवर्नमेंट की रिकैपिटलाइजेशन से जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बैंक सेड दैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम वॉज डिजाइन्ड इन May 2021 प्राइमरली फॉर हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल हु सफर्ड जॉब लॉसेस, पे कट्स, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस फेसिंग एब्रप्ट हॉल्ट इन कैश फ्लो। तो बैंक्स का भी ये कहना है कि अगर पर्सनल लोन इसीलिए ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं, पर्सनल लोन का एक्सपोजर इसीलिए ज़्यादा रखा गया है क्योंकि ये जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, ये स्मॉल जो इंडिविजुअल्स हैं या बोल सकते हैं हाउस होल्ड्स हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर की इंस्टॉलमेंट, अपने पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं। स्मॉल और माइक्रो जो बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, जो कि इसी कोविड की वजह से जिनका कैश फ्लो इम्पैक्ट हुआ, जिनकी क्रेडिट साइकिल इम्पैक्ट हुई और वो अपने लोन रिपे नहीं कर पा रही, बेसिकली उनको हेल्प आउट करने के लिए इन लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है। सो द शेयर ऑफ लोन टू इंडिविजुअल इज हाई इन द टोटल रिस्ट्रक्चरिंग process, and this is the only reason personal loan exposure has been kept high in order to help the small individuals, households or small and micro business organization or company. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिस्कस करें कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है या जो बैंक्स अपने क्रेडिट की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं वो होती क्या है, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस होती है दैट अलाउ एनी प्राइवेट, पब्लिक
or sovereign entity facing any sort of cash problem or liquidity problem and financial distress to basically reduce and renegotiate its delinquent debt to improve or restore liquidity so that it can continue its operation. Imagine करिए किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं, उसने 20 रुपए लोन में दे दिए, उस 20 रुपए में से 10 रुपए डिफ़ॉल्ट हो गए। तो अभी तक जब बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी थी वो 100 रुपीज़ थी, 100 रुपये तक के लोन बैंक दे पा रहे थे। अब चूंकि उसमें से 10 रुपए का जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, वो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो 90 रुपीज़ तक डिक्रीज़ हो गई। ये 10 रुपये जो हैं वो बैंक के वो फंस गए, हम बोल सकते हैं एनपीए में कन्वर्ट हो गए, तो डेफिनेटली बैंक की 10 रुपये तक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, वो डिक्रीज़ हो गई। और इसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट 10% तक का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली, अलग अलग बैंक का मैं ये रेशियो ले रही हूँ, एक एवरेज नंबर 10% तक का जो कैपिटल है बैंक का वो एनपीए में फंसा हुआ है। तो जब बैंक्स के जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो 90% ही रह गई है। और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जबकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, क्रेडिट फ्लो बढ़े, जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्री को, इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को लोन दें जिससे कि डिमांड बढ़े, तो डेफिनेटली इट इज़ अ टाइम फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग। और बैंक्स को भी ये लगता है कि ये तो 10% हमारी फाइनेंशियल बुक को भी ख़राब कर रहे हैं, वाई नॉट रीस्ट्रक्चर दीज 10% लोन। कैसे रीस्ट्रक्चर करते हैं? बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर बोरोवर से नेगोशिएट किया जाता है कि अगर आपका 10 रुपये का लोन आपने, इमेजिन करिए, इट्स ऑल इमेजिनरी नंबर्स, डोंट टेक इट सीरियसली, 10 रुपये का लोन लिया है और 10 रुपये के लोन पे वो पर्टिकुलर बोरोवर पूरा डिफ़ॉल्ट है, तो हम बैंक ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप हमें 8 रुपये दे दीजिए, वी विल गिव यू द कंसेशन ऑन इंटरेस्ट अप टू 2%। या अगर 5 साल तक का लोन था, 5 साल तक का लोन चुकाना था, 5 साल तक का टाइम दिया, तो बैंक बोलते हैं ठीक है, आप 5 साल से ज़्यादा 8 साल का टाइम ले लीजिए और हमको लोन पूरा चुका दीजिए विद दिस % इंटरेस्ट। तो कई सारे टर्म्स पे नेगोशिएट करते हैं बोरोवर से बैंक, टाइम पर, इंटरेस्ट रेट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न एज मच एज पॉसिबल। सो दिस इज़ अ शॉर्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया जिससे कि बैंक्स की जो ऑपरेशन और लेंडिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर कई बार बोरोवर्स जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, अभी हमारी सिचुएशन नहीं ठीक है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट हाँ, आगे आने वाले 5 सालों में वी विल गेट द जॉब और वी विल गेट द प्रॉफिट, सो वी विल रिटर्न दिस पर्टिकुलर अमाउंट, आप हमें एनपीए की कैटेगरी में मत डालिए। डेफिनेटली बोरोवर भी नहीं चाहता कि उसको एनपीए की कैटेगरी में डाला जाए जिससे कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ना खराब हो। कोई भी बोरोवर है, कोई भी हाउस होल्ड इंडिविजुअल इस बात को नहीं चाहेगा कि उसका लोन या उसके इंडिविजुअल प्रोफाइल को एनपीए की कैटेगरी में डाला जाए जिससे कि उसकी फर्दर जो लेंडिंग और बोरोइंग कैपेसिटी है, जो बोरोइंग एबिलिटी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वो फर्दर बोरोइंग ना कर पाए। तो इसीलिए बोरोवर्स जनरली एग्री हो जाते हैं इन सारी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में, और बैंक्स को भी फ़ायदा होता है, बोरोवर्स को भी फ़ायदा होता है। इस तरह से ये रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस चलती है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच इन डिटेल। सो बैंक्स जो हैं अभी फिलहाल न्यूज़ में क्या कहें, 27,000 करोड़ के 8 बैंक्स मिलकर के 27,000 करोड़ के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें 80% जो है वो पर्सनल लोन है, रिमेनिंग 20% बिलोंग्स टू एमएसएमई सेक्टर, एंड द अमाउंट फॉर एमएसएमई सेक्टर आर स्मॉलर, possibly since avenue of support such as emergency credit facilities are already available to them। तो बैंक्स का ये कहना है कि हमने जानबूझ के जो एमएसएमई का जो एक्सपोजर है, एमएसएमई के लोन है, उसको कम रखा है। रीज़न ये क्योंकि एमएसएमईज के पास अदर वेन्यूज़ भी हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट अश्योरेंस स्कीम चलाई है, उसके तहत उनको ऑलरेडी रिलीफ मिल रहा है। तो हमारा इस पर्टिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग में फोकस पर्सनल लोन पर ज़्यादा है। एंड रेटिंग एजेंसी ICRA in a note said that regulatory measures such as moratorium and emergency credit line guarantee schemes loan did not provide relief to borrowers and reduce the need for restructuring। तो ICRA का भी ये कहना है कि एमएसएमई के जो लोन्स हैं उन्होंने सफिशिएंट रिलीफ प्रोवाइड किया है बोरोवर्स को, इसीलिए रीस्ट्रक्चरिंग की जो ज़रूरत है वो अब इतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, स्पेशली इन केस ऑफ एमएसएमई। एंड डिस्पाइट दिस कोविड इम्पैक्टेड कैश फ्लो ऑफ बोरोवर्स। तो लेट अस सी हाउ दिस रीस्ट्रक्चरिंग विल टेक प्लेस, और इससे इंडिविजुअल कंज्यूमर को या इंडिविजुअल हाउस होल्ड को कितना फ़ायदा होता है।
हालांकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम चलाई थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, और उसका इम्पैक्ट एज पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दिख रहा है मार्केट में. सो दिस इज द टोटल एक्सपोजर ऑफ बैंक्स दोज हु आर एक्चुअली गोइंग फॉर restructuring process. तो HDFC, ICI, फेडरल बैंक, येस बैंक, IDBI, South India Bank, Bank of Maharashtra and CSB Bank. So all these 8 banks are actually going for restructuring of approximately 27,000 crore loan, and this is their एक्सपोजर. कितना बिजनेस लोन है उसमें, कितना स्मॉल बिजनेस लोन है, कितना इंडिविजुअल बोरोवर्स का लोन है, और कितने कितने अमाउंट का वो लोन रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं. टॉप 3 बैंक्स हैं HDFC, ICICI एंड फेडरल बैंक. Apart from it, rupees 11,168 crore loan sanctioned in festive outreach program. If you remember, government ने recently एक regulatory framework जारी किया था जहाँ पर जितने भी public sector banks हैं उनको डायरेक्ट किया गया था, even private sector banks को भी डायरेक्ट किया गया था कि वो financial inclusion को improve करें. और उसी को देखते हुए बहुत सारे banks ने outreach program चलाए थे जिससे कि फेस्टिवल सीजन में जो लोन सैंक्शन है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो. तो कई सारे बैंक्स ने अपने डिफरेंट इनोवेटिव वे अडॉप्ट किए थे इन ऑर्डर टू गो फॉर आउटरीच प्रोग्राम फॉर लेंडिंग लोन्स. और अभी तक उसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैज़ collectively sanctioned loan worth ₹11,168 crore to approximately 1 lakh borrowers through their credit outreach program during this festival season. And these are the category under which these loans has been sanctioned: housing loan, vehicle loan, personal loan, durable loans, agriculture loan, business loan. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है इतने अमाउंट के लोन के सैंक्शन होने के बाद, 27,000 करोड़ के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद से फेस्टिवल सीजन में डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़नी चाहिए, और जो कि इंडियन इकोनॉमी को रिकवरी में हेल्प करेगी. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8. Alibaba lost $344 billion in world's biggest wipeout. So few people have already predicted this downward spiral for Alibaba Group Holding when founder Jack Ma delivered a blunt criticism of China's financial system last October. और उसके बाद से जैक मा को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है क्योंकि उन्होंने ब्लंटली क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया के और चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम को, और उसके बाद वो कई जगह भागे भागे भी फिर रहे हैं. येट 1 year on, the technology titan has lost approximately $344 billion in terms of its market capitalization, and that is the biggest wipeout of shareholders value globally according to the data that is compiled by the Bloomberg. और लास्ट अक्टूबर में जैसे ही इन्होंने जैक मा ने क्रिटिसाइज़ किया था चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम को, उसके इमीडिएटली बाद ही बीजिंग सस्पेंडेड द लिस्टिंग ऑफ इट्स फिनटेक आर्म Ant Group and has since followed up with the widespread crackdown on the country's most vibrant sector, causing the Chinese stock to tank. तो इनके स्पीच के बाद से गवर्नमेंट ने इनकी जो फिनटेक आर्म थी दैट इज़ एंट ग्रुप उसको सस्पेंड कर दिया था, उसको लिस्टिंग से हटा दिया था. और उसके बाद से ही ऐसा एंट ग्रुप को हटाने के बाद से जो अदर स्टॉक से जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला. ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी कंपनी के ही मार्केट कैपिटलाइजेशन में डाउनफॉल हुआ, उसके अलावा जो अदर कंपनीज फिनटेक कंपनीज उनके शेयर में भी डाउनफॉल देखने को मिला. एंड अलीबाबा शेयर शैंक्स फ्रॉम all-time high that a month to record low 3 weeks ago in Hong Kong as Beijing stepped up its scrutiny of the company's practices and urged a restructure of its fintech business. ये तो हो रहा ही था. जिस तरह से उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर क्रिटिसाइज किया था चाइना को, उसके बाद से इट वॉज highly anticipated कि Jack Ma is now going to be in problem. And despite a 30% recovery in October 5, the stock is still 43% lower than its October 2020 peak, जबकि जैक मा ने वो स्पीच डिलीवर की थी. तो दिस इज़ द वैल्यू लॉस इन केस ऑफ अलीबाबा. और ऐसा नहीं कि अलीबाबा में जो हुआ उसका इम्पैक्ट अदर कंपनीज पर देखने को नहीं मिला. अगर हम देखें तो चाइना की जो अदर फिनटेक कंपनीज हैं,
चाहे वो सॉफ्ट बैंक हो या अदर कंपनी हो, केई होल्डिंग हो, RLX हो, टैल हो, एजुकेशन ग्रुप हो, सब में, जूम वीडियो, सब में कहीं ना कहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन में फॉल देखने को मिला. दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फॉल. थोड़ा मोड़ा, थोड़ा सा या इनसिग्निफिकेंट फॉल नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में अ सिग्निफिकेंट फॉल हैज़ बीन सीन अमंग all fintech companies. Now let us look into the few other news tips. Canada firms may be robbed into advice land SPV. So government is looking to bring Canada Land Company on board. For what? To assist in the operation of soon to be incorporated special purpose vehicle. In short, we call special purpose vehicle as SPV, that would monetize idle land assets for public sector undertakings and government departments. कई बार इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको डायरेक्ट किया है कि उनके पास जो भी आइडल लैंड पड़ी है, बैरन लैंड पड़ी है, लैंड एसेट्स है जिनका वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन सबको मोनेटाइज करने, जिसमें BSNL के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का लैंड है. तो इसके बाद से ही जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग द लिस्ट ऑफ देयर आइडल लैंड एसेट्स, और उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एडवाइस करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए गवर्नमेंट इज टारगेटिंग, और गवर्नमेंट इज हायरिंग Canada Lands Company for consultancy. Canada Lands Company, a self-financing federal government entity in Canada, specialized in real assets and managing tourist destination. तो consultancy के लिए Canada firm को government is going to get hired. Government is going to hire this particular firm. और क्वेश्चन ये उठता है क्यों इसी फर्म को क्यों गवर्नमेंट हायर कर रही है, इसी फर्म की क्यों कंसल्टेंसी ले रही है? बहुत सिंपल सा रीज़न है, अगर आपको याद हो हमने ये भी डिस्कस किया था. बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू रिप्लिकेट द कैनेडियन मॉडल फॉर इट्स लैंड SPV. जो लैंड मोनेटाइजेशन हो रहा है, जो लैंड एसेट्स हैं उनका जो मोनेटाइजेशन हो रहा है अंडर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, वो उसमें सिंपली गवर्नमेंट जो है वो कनाडा का मॉडल फॉलो कर रही है. तो कनाडा का मॉडल फॉलो कर रही है तो इट विल बी इवन मोर बेनिफिशियल इफ अगर कनाडा की फर्म को, इफ एनी कैनेडियन फर्म्स इज बीइंग हायर्ड एज अ कंसल्टेंसी और एडवाइजरी फर्म. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन Canada Land Company is going to advise or consult this special purpose vehicle in case of India's monetization program. Now let us look into the next clip. Life insurers pay out rupees 11,000 crore in COVID-19 डेथ क्लेम्स. तो COVID-19 से जितनी भी डेथ हुई उसमें जो भी क्लेम्स हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ का जो पॉलिसी सेटलमेंट अभी तक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने किया है बिकॉज ऑफ द कोविड रिलेटेड डेथ, कोविड रिलेटेड claims, and that is a huge chunk of which come this financial year when the second wave ravaged throughout the country. तो almost जो claims आए हैं, जो अगर हम देखें number or the value of the claims that comes after second wave, so this is the amount that life insurance companies have actually sanctions or disbursed out of the claim of COVID-19 death. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रिलेटेड पार्टी डील्स ऑन द राइज, ऑडिटर मस्ट बी अलर्ट, सेज दास. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने मंडे को ऑडिटर्स को बोला है या डायरेक्ट किया है कि ऑडिटर्स बहुत केयरफुल रहें. किस लिए केयरफुल रहें? क्योंकि RBI के अकॉर्डिंग देयर इज़ अ राइज इन इनोवेटिव अकाउंटिंग एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. और अगर ऑडिटर्स किसी भी इस तरह के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन को पाते हैं जहाँ पर जो एक्चुअल बेनिफिशरी है वो डिफरेंट है, डिसगाइज्ड है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को जो रेगुलेटरी ऑडिटर्स हैं दे शुड इमीडिएटली फ्लैग्ड. रिसेंटली हरि भक्ति और कंपनी को 2 साल के लिए बैन कर दिया था RBI ने. किस पर्टिकुलर कंपनी के ये ऑडिटर्स थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हमने डिस्कस भी किया था इस न्यूज़ को. तो हरि भक्ति एंड कंपनी जो ऑडिटर्स हैं उनको 2 साल के लिए बैन किया था दिस पर्टिकुलर
रीजन के लिए। कौन सी कंपनी थी ये जो ऑडिटर्स थे, हरी भक्तियन कंपनी, एक पर्टिकुलर किस कंपनी के लिए के ऑडिटर्स थे जिसकी वजह से इनको बैन किया गया था, उसमें अच्छा खासा फ्रॉड देखने को मिला था। और इसी के बाद से आरबीआई इज कंटिन्यूसली टेलिंग द ऑडिटर्स इन सम केसेस दैट देयर इज मैनिपुलेशन एंड मिस statement in accounts and clever accounting, and that should be dealt with very strictly as per the auditor। और ऑडिटर्स को इसीलिए डायरेक्ट किया है आरबीआई गवर्नर ने, और उनका ये भी कहना है कि रिलेटेड पार्टी जो डील्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और ऑडिटर्स मस्ट बी ऑन देयर टोज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड फ्लैगिंग दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, पीएम लॉन्च ₹64,000 करोड़ हेल्थ इंफ्रा मिशन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि जिसकी जो वर्थ है वो 64,000 करोड़ की है, उसको लॉन्च कर दिया है। तो कल अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस पर्टिकुलर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च कर दिया। हालांकि इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस पर्टिकुलर मिशन इज टू एड्रेस द गैप एंड स्ट्रेंथन द क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क फ्रॉम द विलेज एंड द ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, जिसमें 64,000 करोड़ का फंड जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया है इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। क्योंकि कोविड-19 में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सीधी सीधी पोल खुल गई, उसको देखते हुए जो बहुत सारी वल्नरेबिलिटी थी, क्रैक्स थे इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सामने आ गए। एंड दैट इज़ वाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके लिए बहुत सारे मिशन, आयुष्मान भारत और के डिजिटल एक विंग भी लॉन्च करी गई, आपको पता होगा। इस तरह के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली हेल्थ केयर के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए कई सारी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, जिससे कि विलेज टू ब्लॉक, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू नेशन लेवल, हर लेवल पे जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं दे शुड बी इंटीग्रेटेड एंड दे शुड बी अलाइंड। इसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्कीम को लॉन्च किया कल प्राइम मिनिस्टर ने। और इट इज़ अ ऐप टाइम, जबकि इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स को लॉन्च करना मल्टीपल टाइम बेनिफिट्स जनरेट करेगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, इसके अलावा मनी सप्लाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, दैट में फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन economic recovery. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.